Hello everyone, good morning. Welcome you back in the topic application of trigonometry. In this topic, what we have done till this time, we have solved some questions where only one triangle was required, and we solved some simple and easy questions based on it. From today, we will be learning where two triangles are involved in it, and we will be working on for solving the unknown quantity. Before that, let us revise three concepts. First one, angle of elevation. Second concept, angle of depression. And third one is angle of elevation of sun, that what we have already seen. Now imagine there is a tower and the crow is sitting on the tower and you are on the ground and going to watch the crow. So isn't it we need to elevate our neck, we need to elevate above us, isn't it? And that's the reason this angle is called as a angle of elevation, right? But imagine if you are on the top, that means you are the observer, you are on the top, and there is a car here down on the ground, and you are observing the car. So, isn't it we have to look down to see the car? And the angle this time is called as the angle of depression. But now, which one is angle of depression? See, always remember whether it is angle of elevation or whether it is angle of depression, both are always counted to the horizontal line. You can say it horizon or horizon. You have to count the or measure the angle along the horizontal line. So from here where you're observing, if I draw a horizontal line, imaginary horizontal line, then this angle is called as an angle of depression, right? But one thing is true, that if this one and the ground is parallel to each other, then the angle here and this angle is going to be equal. So basically, our concept, whether it is angle of elevation or angle of depression, won't change, but yes, the diagram would surely change. Okay, I hope you are clear. So always remember one thing, you need to remember whether it is angle of elevation or depression, we have to look the angle with the horizontal line. That's it. If you remember that, never measure the angle with the vertical line. Okay, not even a single question you get in this particular topic where you measure the angle with the horizontal vertical line, always with the horizontal line. Okay, so may it is a ground or may it is a horizon, okay, imaginary horizon, it is always with the horizontal line. Okay, let's go ahead. The question is there on the screen now. Find the height of the mountain if the elevation of its top at the unknown distance from the base is 60 degree. Okay, don't know, है ना? So what is given, that we will start drawing. So there is a ground, of course, and there is a mountain. Surely you can see that mountain here. So let AB be the mountain. Elevation of its top from unknown distance from the base. Matlab somewhere on the base there is some point C from the unknown distance. That means I don't know this distance. The angle of elevation. Okay, elevation means you will be looking at the top of the mountain, and this angle is called as a 60 degree angle of elevation at a distance 10 kilometer further off from the mountain. That means the observer is at sea. From here if I go, or the observer go 10 kilometer at point D. Okay, the angle of elevation changes to 30 degree. देखो, ये ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Once you know how to draw this, then almost your work is done. Okay, so what is asked here? Find the height of the mountain. AB I have to find out. So I can easily describe my answer, describe my diagram. Let AB be the mountain, and C and D are points of observation. Okay, and of course CD is equals to 10 kilometer. So in the beginning when we started the topic, I had
वी हैव सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डायग्राम्स एंड ऑल, तो उसमें हमने एक पॉइंट हमेशा याद रखा था कि साइड शुड बी गिवन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. If it is not given of right angle triangle, then we take a support of another variable. So this is what our target was. So do you really think यहाँ पे 10 km is the side of any right angle triangle? Of course no. So therefore we have to take a support of another variable. So BC is another variable. I'll call it as X, and I'll start working. Okay, working for AB. AB is mountain. ठीक है, I will be finding AB. So first of all I'll use in ट्रायंगल. अपने पास दो राइट एंगल ट्रायंगल्स है, हमेशा याद रखो जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल उसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करो, यू गेट योर आंसर. इन ट्रायंगल ABC, tan of 60 is equals to AB upon x. 60 is root 3, tan 60 is root 3, तो x root 3 will be equal to AB. Call it as equation number 1. Similarly in triangle, the other one is ABD. In triangle ABD, tan of 30 is equals to AB upon BD, of course, है ना. BD is x plus 10 or 10 plus x. That's it. This is, isn't it 1 upon root 3? So 1 upon root 3 is equals to AB upon 10 plus x. Shifting this, that's it. I get 10 plus x upon root 3 is equals to AB. I'll call this as equation number 2. एंड यू नो दैट आई हैव टू इक्वेट दिस इक्वेशंस. यही किया था ना हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में, क्योंकि ए बी सेम है. यही करना है हर बार, बहुत बार ये चीज़ आप लोग करने वाले हो, तो ये अभी सीख लो. ठीक है, अब इसको इक्वेट कर दो. तो एक्स रूट 3 इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स अपॉन रूट 3. तो रूट 3 इफ आई शिफ्ट दिस साइड आई गेट 3x इज इक्वल्स टू 10 प्लस एक्स, एंड 2x will be equal to 10, x will be equal to 5. I got x. Once I got x, I can get AB from equation number 1. It is 5 root 3, and that's the answer. अगर रूट 3 की वैल्यू दी है तो रूट 3 वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, नहीं दी है तो दिस इज द फाइनल आंसर. दैट्स इट. बस ये एक चीज़ भूलना मत, किलोमीटर, ये आंसर लिखना मत भूलना. देयरफॉर हाइट ऑफ द माउंटेन is 5 root 3 kilometer. Don't forget to write this statement as well. Finished. That's it. बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है. ठीक है, हमें करना क्या समझ में आ गया. बस हाँ, ये एक बात हमेशा याद रखो कि अगर साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल दिया है तो बिल्कुल भी कोई वेरिएबल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पढ़नी चाहिए आपको. तो ये जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सोच रहे अभी, इसका आपको बहुत यूज़ होगा आगे जाके. ओके, क्वेश्चन को समझने में, क्वेश्चन को याद रखने में, ऑल दीज कॉन्सेप्ट विल बी हेल्पिंग यू. ये हम लोग एक जनरल कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, एक ही मेथड हर एक क्वेश्चन के लिए. तो इसलिए इसको ठीक से करो, ठीक से समझो. तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दी है तो डायरेक्टली सॉल्व करना है, अगर नहीं दी है तो वेरिएबल लेना है. ठीक है, ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया. तो थोड़े क्वेश्चन मैं खुद सॉल्व करूँगा आपके लिए, लेकिन धीरे धीरे मैं उसको रिड्यूस करता जाऊँगा, याद रखो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड. तो एक रोड है, रोड के ऊपर 2 पिलर्स है, इक्वल साइड. ठीक है, इक्वल हाइट विच इज 100 मीटर वाइड. अभी व्हाट इज 100 मीटर वाइड? इफ यू रीड इट केयरफुली, द रोड इज 100 मीटर वाइड. तो ये है 100 मीटर. ओके, तो वो रोड कैसे जा रहा है मालूम है? ये ऐसे जा रहा है. दिस इज हाउ द रोड इज. ओके, समझ में आ गया ना? तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, मतलब आपको बस एक विजुअलाइजेशन आने के लिए मैंने बस वो ड्रॉ किया. ठीक है, ओके. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर आर, कहाँ से? हाँ अच्छा, आगे लिखा है आर 60 एंड 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड. तो रोड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया मैंने, रोड के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लिया, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन टू टॉप ऑफ द 2 पिलर इज 60 एंड 30. वो ज़रा ज़्यादा बड़ा दिख रहा था इसलिए मैंने वो 60 लिखा. ऐसे कोई ज़रूरी नहीं कि इस साइड 60 इस साइड 30 है, कुछ नहीं, एनीथिंग इज ओके फॉर दिस. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, अभी हमें करना क्या है? हाइट ऑफ द पिलर्स, ऑफ कोर्स वही तो फाइंड करना पड़ेगा. तो ये कुछ आर पॉइंट है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं.
फिर से वही क्वेश्चन, दो ट्रायंगल्स तो दिख रहे हैं, दो ट्रायंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई भी साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, गिवन है तो कंटिन्यू करो, नहीं है तो वेरिएबल लो। तो इज दैट 100 विच इज गिवन इज द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल? ऑफ कोर्स नो। तो कोई भी एक वेरिएबल कंसिडर करो, आइदर आरबी के लिए कर सकते हो या फिर क्यू आर के लिए कर सकते हो। तो मैंने आरबी के लिए किया, तो क्यू आर वुड बी इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ये समझ में आना चाहिए, 10th में हो इतना तो आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री दो ट्रायंगल्स में, डिस्क्रिप्शन लिखना मत भूलना, लेट है ना, ऐसे पी क्यू एंड ए बी बी पिलर्स एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, आर इज द एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्यू बी इज इक्वल टू 100। बहुत कुछ कैसे जैसे आपको चाहिए वैसे आप लिख सकते हो, अभी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो तीन पॉइंट डिस्क्रिप्शन में अब क्या होने चाहिए इन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? पी क्यू आर लेते हैं, दो इक्वेशन बनाना, इक्वेट करना है, ठीक है ना। tan ऑफ 30 पी क्यू अपॉन 100 माइनस एक्स, 1/√3 होता है, तो 100 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1। वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग जो पिछले क्वेश्चन में किया था। इन ट्रायंगल ए बी आर वी हैव tan ऑफ 60 इज इक्वल्स टू ए बी बाई एक्स, तो ए बी इज इक्वल्स टू x√3। ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी आपको पता चल गया कि वी नो दैट ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, है ना। तो ये दो इक्वेशन हम लोग इक्वेट कर सकते हैं एज पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी, वी हैव 100 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू x√3, बराबर है। अभी x तो इधर चला जाएगा, तो आई गेट 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3x, x उधर गया तो 4x हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 4x, x विल बी इक्वल टू 25। 100 माइनस एक्स, अभी देखो x 25 आ गया, 100 माइनस एक्स कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा, 25 प्लस 75 100, तो 75 आ जाएगा। पूछा क्या, देखते हैं, फाइंड द पोजिशन ऑफ पॉइंट बिटवीन द पिलर्स ऑन द रोड, मतलब वो आर पॉइंट कहाँ पे होगा? इट विल बी एट 25 मीटर फ्रॉम वन ऑफ द पोल। ओके, सो दिस इज व्हाट द आंसर, 25 मीटर जो हम आया है ना यहाँ पे, वही आंसर है पहले वाले का। दूसरे वाले का आंसर क्या है? ये क्या हो गया? दूसरा क्या पूछा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द पिलर। हाइट ऑफ द पिलर मतलब पी क्यू या फिर ए बी फाइंड करेंगे। कौन सा ईजी है? ए बी ईजी है फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो इट विल बी ए बी इज इक्वल टू 25√3। देखो कितना सिंपल है, हो गया मीटर, आंसर आ गया। तो व्हाट इज द कंक्लूजन यहाँ पे? द पॉइंट is at 25 centimeter from the pole and height of the pillar and height of the pillar is 25√3 meter. Finished. That's it. बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। तो मेरा वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार यूज़ करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन बिल्कुल भी हम लोग यहाँ पे ये नहीं करेंगे कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, नहीं, सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं होंगे। हमें हर एक क्वेश्चन को ठीक से एनालाइज करके फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस पहले तो 10-12 क्वेश्चन में आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, एक बार सब कंक्लूजन या फिर सब डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी सिंपल। चलो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, अभी ऊपर से देखा है, देखो डिप्रेशन दिया हुआ है ना, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, तो देर इज ए बिल्डिंग, तो एक ग्राउंड ड्रॉ किया मैंने एंड देर इज ए बिल्डिंग। तो चलो ए बी इज बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ tower are observed to be 30 and 60 degree respectively. Angle of depressions, तो इसके सामने एक टॉवर है, ये जो बिल्डिंग है इतनी बड़ी है कि इसके सामने एक टॉवर है, उस टॉवर के बॉटम का एंड टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, मतलब उसके बॉटम एंड टॉप में कनेक्ट कर दिया मैंने। एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे चेक करते हैं आपको पता है, डिप्रेशन कैसे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के 30 डिग्री 60 डिग्री, ये रहा। लेकिन आपको तो पता है कि अगर ये टोटल 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल है, और वो 30 है तो कौन सा 30 हो जाएगा? यस एग्जैक्टली, यहाँ पे एक लाइन बना के ये 30 हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने डिप्रेशन भी लिखा हुआ है तो भी हम लोग नीचे ही वो एंगल को लेंगे एंड सॉल्व करेंगे। 60 मीटर बिल्डिंग की हाइट है,
पी क्यू इज माई टावर। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। करना क्या है बाय द वे, फाइंड हाइट ऑफ द टावर, पी क्यू फाइंड करना है। डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो आप लोग, लेट ए बी द बिल्डिंग, ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर, पी क्यू इज द हायर टावर, ओके, द ऑब्जर्वर इज एट पॉइंट ए, फिनिश्ड, सो सिंपल। ऑब्जर्विंग लिख सकते हो, ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। सबसे पहली बात, एक क्वेश्चन हमें हमेशा पूछना है कि इज द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन, है क्या यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है 60 मीटर इज द साइड ऑफ ए बी क्यू। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्टली पी क्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे एक नाम देते हैं हम लोग, कुछ एम एम जैसे नाम दे देते। तो चलो, इन ट्रायंगल आपको वही करना होता है, दो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है विदाउट टेकिंग वेरिएबल। ट्रायंगल ए बी क्यू लिया, तो tan ऑफ 60 ले सकते हैं हम लोग, tan ऑफ 60 आराम से ले सकते हैं। tan ऑफ 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी क्यू। क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें, समझ में आएगा आपको, 2 मिनट में समझ में आएगा। ए बी कितना है 60, ये √3 है, √3 इज इक्वल टू 60 अपॉन बी क्यू। बी क्यू इधर आ गया, √3 इधर आ गया, क्या आएगा, बी क्यू इज इक्वल टू 60 अपॉन √3। √3 से मल्टीप्लाई किया तो 20√3, तो बी क्यू आ गया 20√3। कैन यू टेल मी एम पी कितना आएगा, अगर बी क्यू 20√3 है, एम पी भी वही होगा। सो इन ट्रायंगल अभी हम लोग किसमें देखेंगे, ए एम पी में। अभी मैंने समझ में आया आपको क्या, मैंने ए बी क्यू में बी क्यू क्यू फाइंड किया, सो दैट आई गेट वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ए एम पी। याद रखो इसको। तो इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। जिसकी गिवन साइड है उसको यूज़ किया, tan यूज़ किया। नॉर्मली tan यूज़ करना पड़ता है, जो आप देख रहे हो अभी भी, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन पे, सारे क्वेश्चन में आई थिंक ऑलमोस्ट हमने tan ही यूज़ किया हुआ। तो ये आएगा, देखो ए एम पी में tan ऑफ 30 इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम पी, बराबर है ना। tan 30 है 1/√3, एम है तो पता नहीं, एम फाइंड करना है। एम पी कितना आता है, एम पी 20√3, √3 गेट कैंसिल, ए एम विल बी इक्वल टू 20। अभी आप पूछोगे पी क्यू फाइंड करना था, हम लोग क्या क्या फाइंड कर रहे हैं, है ना। ऐसा ही होता है इस ट्रिग्नोमेट्री में। देखो पी क्यू विल बी इक्वल टू एम बी, तो एम बी फाइंड कर सकते हो, यस, है ना। तो एम बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए एम। याद रखो, आपको आइदर ऐड करना होगा या फिर सेपरेट करना होगा टू फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो ए बी माइनस ए एम, तो कितना होगा 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 40। देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल्स टू 40 मीटर। ये रहा आपका आंसर। समझ में आ गया, मतलब किया क्या, जिस ट्रायंगल की साइड मालूम थी वो साइड में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ किया, उससे एक साइड मिल गई, उसका यूज़ करके दूसरे ट्रायंगल में साइड फाइंड कर दिया, फिर ऐड करना है या फिर सेपरेट करना है, एंड यू गेट योर आंसर। ओके, यहाँ पे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड दी हो तो आपको वेरिएबल लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाक से। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, 9th क्वेश्चन, आप खुद भी कर सकते हो। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर विच इज 12 मीटर हाई। ये रहा आपका पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम दिस टॉप ऑफ द टावर पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो ये जो डिप्रेशन है ये कितना है, 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो ये रहा ए बी सी, आपको ए सी फाइंड करना है। हाँ, ए सी इज हाइपोटेनियस है ना, तो कौन सा रेशियो यूज करना पड़ेगा बताओ, इफ इन टर्म्स ऑफ 30 डिग्री इट इज अपोजिट एंड हाइपोटेनियस, कौन सा हो, साइन थीटा, साइन 30। तो करो, मुझे ऐसे लग रहा है कि आंसर 24 आना चाहिए, ए सी ईजी है। आगे बढ़ते हैं, चलो। अलग अलग क्वेश्चन होता है इसमें, डायग्राम को ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। देखो मैंने इस वर्कशीट में कितने क्वेश्चन दिए पता है, आई थिंक ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन थे, 50। 50 में से मैं करूंगा 20 क्वेश्चन, आई विल बी सॉल्विंग 20 क्वेश्चन एंड 30 आपको करने हैं।
इस एक्सरसाइज में, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में खुद से करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डायग्राम को ड्रॉ करना सीखना या फिर कैसे सॉल्व करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमने ज़्यादा प्रैक्टिस लिया हुआ है इसमें, तो आप लोगों को बस थोड़ा सा फोकस करके करना पड़ेगा, दैट्स इट। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। एन एरोप्लेन एट एन आल्टीट्यूड, आल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, 20 मीटर। देखो एरोप्लेन तो ये रहा ग्राउंड, ग्राउंड पे तो एरोप्लेन नहीं होगा, ऊपर ही होगा। तो ये रहा वो 200 मीटर वाला अल्टीट्यूड। तो यहाँ पे है मेरा एरोप्लेन ए पे। ऑब्जर्व्स, एन एरोप्लेन ऑब्जर्व्स मतलब एरोप्लेन पे कोई तो बैठा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू अपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर टू बी टू अपोजिट पॉइंट, मतलब एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, अपोजिट। ओके, ऐसे भी हो सकता है कि ये ऐसे रिवर जा रहा है, दोनों एक ही तरफ हो, ऐसे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन द टू बैंक्स ऑफ द रिवर टू बी 45 मीटर, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। टू अपोजिट, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है कि वो आइदर साइड है या एक ही साइड में है। ओके, तो हम लोग एक साइड में लेते हैं, ठीक है, एक साइड में लेते हैं, एक साइड में कंसिडर करते हैं, ऐसे वाला क्वेश्चन, फाइन। तो हम लोग कंसिडर करते हैं ऐसे। नॉर्मली इसमें देना चाहिए था कि फाउंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द कोन और एट द सेम साइड ऑफ द कोन, क्योंकि ये डायग्राम में दोनों आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आइदर साइड एंड सेम साइड में कैसे होता है डायग्राम। चलो मैं इसको बस इरेज करता हूँ। ये है टू बैंक्स, ए हो गया ना, बैंक है ना, बी एंड सी, ये बैंक ऑफ द रिवर है ना, ऐसे ऐसे रिवर जा रहा है, बैंक ऑफ द रिवर, समझ में आ गया। और यहाँ पे वो ऑब्जर्वर है, तो ये अपोजिट बैंक ऑफ द रिवर हो गया। और अगर सेम साइड ऑपोजिट साइड हो तो ये है सेम साइड, मतलब जो रिवर है वो सेम साइड में या ऑपोजिट साइड में। तो ये रहा ए, ये पी, ये 200 मीटर, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अभी राइट नाउ इट इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो हम लोग पहला वाला डायग्राम कंसिडर करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते। तो हमारे पास डायग्राम तो क्लियर हो गया, लेकिन डिप्रेशन ठीक से हम लोग मार्क नहीं कर पा रहे। डिप्रेशन जो होता है वो ऐसे होता है, ओके, जो छोटा एंगल है वो छोटा लिखो, यहाँ पे छोटा कौन सा एंगल है, 45 है, तो ये रहा 45 और ये रहा 60। तो ठीक से प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड करके कौन सा 60 होगा, तो ये 60 होगा और ये होगा 45। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। मेरे पास अभी डायग्राम रेडी है। इस दो एंगल्स को जो डिप्रेशन में लिखे हुए इसको सिर्फ लिखने के लिए यूज़ करना है, बाकी यूज़ करने के लिए आपके नीचे वाले एंगल्स ही होंगे, याद रखो इसको। तो चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं। हमें डिस्क्रिप्शन तो आपको लिखना पड़ेगा, प्लीज़ डू मेंशन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एवरी क्वेश्चन। नहीं आ रहा है समझ में तो वो भी बताओ, मैं हर एक क्वेश्चन के लिए लिख के देता हूँ, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं। तो चलो फटाफट से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली बात, 200 मीटर जो दिया है वो साइड ऑफ और राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, ये क्वेश्चन आपको अगर पूछोगे तो यस इट इज़ द साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोई ज़रूरत नहीं टेंशन लेने की, डायरेक्टली ट्रायंगल ABP में अपना ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करो। तो ये आएगा tan 60 इज इक्वल टू 200 अपॉन PB। तो tan 60 है √3 इज इक्वल टू 200 अपॉन PB, बराबर। तो PB कितना आएगा, 200 अपॉन √3, और इट वुड बी इक्वल टू 200 √3 अपॉन 3। ये डिविजिबल नहीं है तो ऐसे रखना पड़ेगा, तो PB आ गया। सेकेंड ट्रायंगल में अगर मैं यूज़ करूँगा इन ट्रायंगल कौन से वाले, APC में, तो tan ऑफ क्या होगा 45, 30 नहीं है इस बार, AP अपॉन PC। तो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आएगा 2 मिनट में। ये 1 आएगा, AP कितना है 200 इज इक्वल अपॉन PC, तो PC विल बी इक्वल टू 200, हो गया। आई एम सॉरी, डन। PC विल बी इक्वल टू 200। तो मेरा PC जो है वो 200 है, PB जो है वो 200 √3 अपॉन 3 है, तो BC कैसे होगा, BC मिल जाएगा ना मुझे, क्योंकि वही तो मुझे फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। मतलब ये जो BC है, ये जो जहाँ पानी है, ये मुझे ढूंढना है कि कितना है, ठीक है ना। तो BC मुझे इजीली मिल जाएगा, BC इज इक्वल टू PC माइनस PB।
देखो ये होता है कॉन्सेप्ट, कितना ईजी है। देखो वही वही एक ही कॉन्सेप्ट हम लोग बार बार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसको जनरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पी सी कितना है, पी सी इज़ 200 माइनस पी बी इज़ 200√3/3। तो ये हो जाएगा 2×3 = 600 माइनस 200√3/3। तो फाइनली मेरा ये आंसर हो सकता है कब, जब √3 की वैल्यू ना दी हो। लेकिन अगर √3 की वैल्यू दी है तो इसके बाद क्या करना है, देखो √3 की वैल्यू आप लोग यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, लेकिन नहीं पुट करनी है। यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं पुट करनी है, ओनली फॉर द फाइनल आंसर। डोंट वेस्ट योर टाइम, अदरवाइज यू विल गो रियली रॉन्ग, रियली रॉन्ग। तो 600 माइनस 200 इंटू 1.732/3, ये रहा आपका आंसर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। 1.732 इंटू 2, तो 2×2 = 4, 2×3 = 6, नहीं तो 14, 4 1 कैरी, 2 1 2 + 1 3। अभी इसमें जीरो ऐड कर देते, 2 0 1 2, 3 पॉइंट के बाद डेसिमल 1 2 3 के पॉइंट मिल गए। तो ये रहा आपका 600 माइनस 346.4, तो 6 1 कैरी, 3 1 कैरी, 5 1 कैरी, 2 1 पॉइंट। तो ये रहा 253.6 डिवाइडेड बाई 3। तो आप लोग इजीली कर सकते हो, आंसर इज इन मीटर। दैट्स इट, गेटिंग इट, अंडरस्टूड। सो वेरी सिंपल। √3 दिया है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, नहीं दिया है तो ईजी हो जाएगा, है ना। बस हाँ, आंसर लगने के लिए वियर्ड लगता है। अगर ये आंसर होता तो आप लोगों को लगता है अरे आंसर गलत ही है, लेकिन नहीं, रिमेंबर दैट कि √3 नहीं दिया है तो आंसर थोड़े से वियर्ड लगते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 तो आप कुछ कर सकते हो, तो मैं नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। ये भी 11 दोनों, मतलब ये जो 11 है ये भी आप लोग खुद करो, थोड़ा सा ट्राई करो। ओके, आ जाएगा आपको। थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करो, एक ट्रायंगल है। देखो यहाँ पे कैसे है, अभी तक क्वेश्चन में 2 ट्रायंगल थे, यहाँ पे कैसे एक ट्रायंगल। तो 11 खुद से करो, खुद से करो। ये देखो ये भी ईजी है। ट्री कास्ट शैडो ऑफ एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री, आप खुद से कर सकते हो। देखो इसलिए मैंने वो प्रैक्टिस के लिए हर एक क्वेश्चन को रखा हुआ है। आप लोगों को करना क्या है, बस सॉल्व करते जाना है। ओके, तो 13th क्वेश्चन देखते हैं, 13th वन, जहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन हो सकता है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एट अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर, तो ग्राउंड है, टावर है, ए बी है, एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। आफ्टर गोइंग 40 मीटर टूवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, मतलब ये जो सी पॉइंट है यहाँ से मैं 40 मीटर अंदर चला गया और वहाँ से देखा तो वो टावर का ये कितना था, 60 डिग्री था। थोड़ा सा डायग्राम वियर्ड हो गया, छोटा हो गया, तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फिर से निकालता हूँ, उसमें क्या है। तो ये रहा मेरा टावर 45 डिग्री, ए बी सी। फ्रॉम हियर इफ आई मूव टूवर्ड्स द टावर देन द एंगल ऑफ एलिवेशन वॉज 60 डिग्री। ये रहा 40 मीटर। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, नहीं आ गया ना। हाँ अच्छा, दिया क्या है यहाँ पे, 40 मीटर। इज 40 अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो मुझे वेरिएबल के सपोर्ट लेना पड़ेगा, तो कौन सा होगा वेरिएबल, बी डी। एग्जैक्टली करेक्ट, आपको आने लगा अभी, है ना। चलो फिर हमने करना क्या है, हाइट ऑफ द टावर ए बी फाइंड करना है। ए बी फाइंड करने के लिए 2 ट्रायंगल का यूज़ करना है, ए बी डी में tan ऑफ 60, देखो कितना आएगा tan ऑफ 60, ए बी अपॉन एक्स, √3 x इज इक्वल्स टू ए बी। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ट्रायंगल ए बी सी में देख लो, ए बी सी में देखो tan ऑफ 45, ये थोड़ा सा वियर्ड है। tan ऑफ 45 क्या आता है, tan ऑफ 45 डोंट से 1, आप ये देखो पहले ट्रायंगल में देखो, ए बी अपॉन बी सी, बी सी कितना है, x+40, नहीं तो x+40 1 होता है ना tan 45, तो x+40 इज इक्वल्स टू ए बी। ये रहा मेरा सेकेंड इक्वेशन। अभी करना क्या है, करना कुछ नहीं है यहाँ पे करना है इक्वेट, ठीक है। तो √3x इज इक्वल्स टू x+40। ये थोड़ा सा वियर्ड क्वेश्चन आपको लग सकता है। x को इधर शिफ्ट कर दिया क्योंकि x चाहिए मुझे, तो √3x + x, सॉरी आई नो
आई मेड ए मिस्टेक। √3x - x इज टू 40 हो गया। √3 की वैल्यू बिल्कुल भी पुट नहीं करनी है, रिमेंबर दैट। अभी ये रहा डिफिकल्ट क्वेश्चन। x कॉमन निकालो, √3 - 1 इज टू 40। देखो अभी तक क्या होता था, डायरेक्टली 3 या फिर 2 आता था तो इजी था, लेकिन यहाँ पे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो ठीक है। x इज टू 40 अपॉन √3 - 1। कैसा भी क्वेश्चन है हम लोग डरेंगे नहीं। देखो ये √3 + 1 याद आया, √3 + 1 रैशनलाइज करना याद आया, एग्जैक्टली वही करना है हमें जो 9th स्टैंडर्ड में किया था। √3 + 1 नीचे आएगा, √3 स्क्वायर 3, 1 स्क्वायर 1, 3 - 1 2। रैशनलाइजेशन याद नहीं आ रहा है तो मुझे बता, उसके लिए अलग से वीडियो 9th स्टैंडर्ड का जो वीडियो होता है रैशनलाइजेशन का, वो मैं आपको सेंड करता हूँ। तो ये रहा 20 इंटू ब्रैकेट √3 + 1। यहाँ पर भी आपको √3 की वैल्यू बिल्कुल भी पुट नहीं करनी है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू रैशनलाइज एवरी टाइम। फाइंड द हाइट ऑफ द टॉवर। तो मेरे पास x आ गया, लेकिन टॉवर की हाइट क्या होगी, AB होगी। तो पहले वाले क्वेश्चन जो है ना, पहले वाले क्वेश्चन में जो है उसमें हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो देयरफॉर AB इज टू √3 इंटू एक्स। एक्स क्या है, 20 इंटू ब्रैकेट √3 + 1। अभी जैसा है वैसे ही लिखना पड़ेगा, है ना। √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 20, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना डायरेक्टली, समझ में आ गया। देखो ये तो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होता, तो अंदर बस ब्रैकेट में अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो भी चल जाएगा, बराबर है ना। तो √3 को मल्टीप्लाई कर तो 3 होगा, प्लस √3 ये हो गया। देख लो ठीक से, समझने की कोशिश करो। √3 इंटू बस इसको मल्टीप्लाई किया, 20 को करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना। तो 20 इंटू 3 + 1.73, जो दी है वैल्यू वो लिख लिया, 4.73। ये हो गया 20 इंटू ब्रैकेट 4.73। इसका आंसर लिख लो, दैट इज़ इन मीटर। दैट्स इट, आपका आंसर आ गया। ठीक से देख लो, समझने की कोशिश करो। सबसे डिफरेंट यहाँ पे क्या था, बाकी सब तो वही किया हमने, डिफरेंट यहाँ पे क्या था, ये फाइंड करना, क्योंकि वो रूट में था। समझ में आ गया, क्लियर, अंडरस्टूड। तो पता नहीं हमने कहाँ से शुरू किया था इस क्वेश्चन सीरीज़ को सॉल्व करना। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कर दिए हैं। चलो देखते हैं फिर से। मुझे लगता है 6 क्वेश्चन से शुरू किया था, 6 से हाँ यहाँ से शुरू करते। एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन कर दिए, 3 4 5 6 7 8 एंड ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के आपको ये 9 क्वेश्चन 13 तक, क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। कल से हम लोग और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देखेंगे। डिफ़िकल्टी लेवल अभी जो होगी क्वेश्चन की वो थोड़ी ज़्यादा होगी, एंड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है जो ज़्यादा टाइप नहीं है, थोड़े थोड़े टाइप है, कम टाइप है। हम लोग धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे। सो आई थिंक आई शुड स्टॉप हियर। दिस इज आई थिंक आवर 3rd डे ओनली, इजंट इट, एंड वी हैव रीच्ड टिल 13th क्वेश्चन, ठीक है। तो मैक्सिमम 4 days इट विल टेक टू कंप्लीट योर 50 क्वेश्चंस, ओके। उसमें से भी मैं ज़्यादा नहीं करने वाला, आप ही को करना है। तो देखो, आप डिसाइड करो। कल मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करके रखता हूँ कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, सो दैट यू विल ऑल एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग क्वेश्चन एज वेल। तो कल मैं सीक्वेंस वाइज नहीं लूँगा, मैं थोड़े क्वेश्चन सिलेक्ट करके उतने ही क्वेश्चन लेता हूँ, ओके फाइन। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू tomorrow with a new topic, new questions, isn't it? Bye bye.